ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹੇ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕਢੇਵੇ ਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨ ਅੰਤ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼। ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ। ਸਗਲਿਆਂ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਏਕ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ, ਭੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਭੈ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਜੋ ਇੱਕ ਭੈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਭੈ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਝ ਹੈ, ਉਹ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਈਸ਼ਵਰ ਜਿਸ ਭੈ ਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਵੰ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭੈ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੈ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੈ ਪਈਏ ਤਨ ਖੀਣ ਹੋਏ, ਲੋਭ ਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਜਿਉ ਬੈ ਸੰਤਰ ਧਾਤ ਸੁਧ ਹੋਏ, ਤਿਉ ਹਰ ਕਾ ਭਉ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਵਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਮਾਮ ਦੁਰਮਤੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੀਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਭੈ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਤੇ ਹਸਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਇਹ ਈਸ਼ਵਰੀ ਭੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖੇੜਾ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੈ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਥੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੂਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਵਨ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵਗ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਬਾਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਵਨ ਨੂੰ ਬੇਮੁਹਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੈਸੇ ਪਵਨ ਨੂੰ ਬੇਮੁਹਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਵਨ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲਖ ਦਰਿਆ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਨਦੀ, ਨਾਲੇ, ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਗਿਆਨੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਪੂਰੇ ਹੜ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ
शहर नूं ढा लाणी शुरू कर दिती। बाबे फरीद दा भी अस्थान दरिया सिंध दे किनारे, सारे कस्बे वासी आके फरियाद करते ने बाबे फरीद नूं भी जिस ढंग नाल ये दरिया चढ़िया ते जिस ढंग नाल इसने ढाल आई है, इस ढंग नाल ते साडा शहर बचना बड़ी औखी गल है ते थोड़ा डेरा भी बचना बहुत औखी गल है। बाबा फरीद दरिया सिंध दे कंढे आके खड़े होए, ओदियां उछलदियां लहरां नूं वेखदे ने। ओ हड़ ते आया है, बेमुहारे है, ऐसा आप नूं प्रतीत होया है। तो आप कहंदे ने फरीदा कंदी वहन न ढाए, तू भी लेखा देवना। ऐ दरिया एक किनारे ना ढा, तबाइयां ना लिया, बर्बादियां नूं जन्म ना दे, तैनू भी लेखा देना पेगा। इतनी गल आखण दी देर से दरिया पहले नालों भी ज्यादा हड़ ते आ गया, पानी वध गया, ढा पहले नालों भी जोर दी लग गई। तो आप दे हथ जुड़ गए, आपने सिर झुकाया ते आप दे मुंहों ए बोल निकले, कंदी वैन न ढाए, तू भी लेखा देवना। फरीदा जिधर रब रजाए, वैन ते दाऊं गांव करे। दरअसल ते रब दी रजा दे चल रहा है, ये ते रब दे भै दे चल रहा है, ते जिधर रब चला रहा है ये उधर चल रहा है। ये ढा भी रब दी रजा दे लगी हुई है। इस वास्ते रब दी रजा दे सारे राजी हो, सारे मस्तक झुकाओ, सारे दुआ करो, सारे हथ जोड़ो, हे अकाल पुरख, हे रब, हे खुदा, जो तेरी रजा असी उस दे च राजी। कहंदे ने ऐसी दुआ करदियां दरिया अपने सीमत दायरे दे वगण लग पिया। ये साखी, ये सलोक इस गल का सबूत मुहैया करता है कि सब कुछ मर्यादा दे चाहे ते प्रभु भय दे चाहे। साहिब कहंदे ने अनंत दरिया, ये लखां नदी नाले सब भय विच चल रहे ने, भय विच अगन कड़े वेगार। ये जो अग्नि सेवा कर रही है तरह तरह की, अजोके युग दे ते अगन दी बहुत वड्डी सेवा है। रेलां मोटरां गड्डियां अग दे आसरे ते चल रही ने, और इस तो इलावा बड़े बड़े कारखाने अग दा ही इस्तेमाल कर रहे ने। मनुख दे शरीर दे पाचन शक्ति ते जिंदगी देण दा कम अग कर रही है। अग बहु पक्षी सेवा दे जुटी हुई है। साहिब कहंदे ए भी भय दे है, अगर ये मर्यादा च ना होवे, भय दे च ना होवे, ते ऐसा भी हो सकता है अग ठंडी हो सकती है। अग सेक देण दी थां ते ठंड देण लग पवे, ते जे अग ठंड देण लग पवे तां अग अग ही ना रही, अग दी जो सेवा है वो सेवा ही ना रही। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहते हैं इत्थे जो अग्नि है ये भी प्रभु दे भय दे चल रही है। कहते ने कबीर दे घर नूं जद अग लगी ते घर सारा जल के खाक होया, खड्डी भी जल गई, कपड़े भी जल गए, साजो समान सारा जद घर दा जलिया। ते आप कहते ने आपे पावक आपे पवना, जारे खसम तार आखे कवना। हे खसम, अज तू मेरे घर दे च आया है अग दे रूप विच, अज तू मेरे घर दे च आया है पवन दे रूप विच, ते जद तू ही मेरा घर साड़ना है ते बचाएगा कौन? जद तू ही अग है ते मेरे घर नूं लगी है, हे प्रभु हुण होर कौन रखवाला होवेगा, हुण होर कौन बचावेगा? अग दे विच भी अकाल पुरख दा रूप वेखना, भाव उदी रजा वेखना, उदा हुक्म वेखना, अग नूं भी प्रभु दी मर्यादा दे विच वे। ये भगतां दी एक दृष्टि होंदी है, ये भगतां दी एक सोचनी होंदी है। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहंदे ने भय विच अगन कड़े वेगार, भय विच धरती दब्बी भार। अनेकां तरह दे भार दे थल्ले दबी ये धरती, जिहदे ते पहाड़ ने, दरिया ने, दरख्त ने, पशु पंखी ने, मनुख ने, अनेकां तरह का बोझ लैके जो ये धरती दबी हुई खड़ी है। सतगुरुदेव जी कहते हैं यह भी भय दे, ये भी किसी मर्यादा, ये बेमर्यादा नहीं, ये प्रभु दे भय तो बिना नहीं।
अगां चल के आप फरमान करते हैं, भय विच इंद्र फिरे सिर भार, भय विच राजा धर्म द्वार, भय विच इंद्र फिरे सिर भार। इंद्र बदल जो सिर दे उपर मंडला रहे ने। इस्लाम दे विच पानी दे देवते नूं ख्वाजा खिजर कहंदे ने, साडे देश दे विच इंद्र कहंदे ने। बदल उपर मंडला रहे ने। साहिब कहंदे ने ये भी पै दे विच किसे मर्यादा दे विच उपर मंडलांदे पए ने ते फिर बरसदे पए ने। ये जो राजा धर्मराज है, जो जीवां दे लेख लिखदा है, ये जिहड़ी मर्यादा है, ये भी प्रभु दे भय दे च है। भय की उलंघना हुई तो बेतरतीबी हो जाती है। इस वास्ते प्रभु का भय ऐसा है, कोई भी जड़ चेतन उसकी उलंघना नहीं कर सकता। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहते ने, ये धरती जिथे भार लैके खड़ी है, उत्थे सिरां दे उत्ते भार बन के ते पानी वरसा रहा जो इंद्र है, ये भी भय दे च है। और ये धर्मराज जो जीवां दे कर्म पे लिखता है, ये भी भय दे च है। भय विच सूरज भय विच चंद, कोहो करोड़ी चलत न अंत। जो अनंत को करोड़ा मील की यात्रा करते हैं, चंद्रमा सूर्य इत्यादि, ये सारे दे सारे भय दे विच ने, मर्यादा दे विच ने। सतगुरुदेव जी महाराज अगां चल के कहते हैं, भय विच जोध महाबल सूर। भावें कोई जोधा है, महाबली है, सूरमा है, पर वो भी भय दे च है, वो भी डर दे च है। कदी गौर मुताला करिए, डर बिहून कोई भी नहीं है। सतगुरु आप कहते हैं, सगल समगरी डरे बेआपी, बिन डर करने हारा, कौ नानक भगतन का संगी, भगत सोए दरबारा। तो साहिब फरमान करते ने, ये योधे, ये महाबली, ये सूरमे सारे भय दे च ने। भय विच आवे जावे पूर, जिंदगियां दे पूरां दे पूर जो जमदे ने मरदे ने, भय दे च ने। चाहे बच्चा है, चाहे जवान है, चाहे बुढ़ा है, ये जो जन्म चल रहा है, ये जो मरण चल रहा है, ये पूरां दे पूर जो आ रहे ने, जा रहे ने, सारियां दे उत्ते भय दा लेख लिखिया है। भाव सब दे अंदर भय चल रहा है, ते भय व्यापक रूप दे विच हर एक दे अंदर काम कर रहा है और वख-वख काम कर रहा है। किधरे मौत दा भय है, किधरे बीमार पै जाण दा भय है, किधरे ऐसा भय है कि कमाया होया धन मेरा नाश ना हो जाए, किधरे ये भय है कि सील संजम कीती हुई भक्ति मेरी नष्ट ना हो जाए। तो भय मनुख की सुरक्षा है। भय परमात्मा वालों दुख ते तकलीफ नहीं। अगर बीमार हो जाने का भय ना होवे ते मनुख इतना खावे कि पशुओं को भी मात कर देवे। ये बीमार हो जाने का भय मनुख को संजम दे च रखता है। अगर विकारां दे च मलीन होने का भय ना होवे ते मानसिक रोगी होने का भय ना होवे, तो फिर जगत दे च कोई भी सदाचारी नहीं रहेगा, सारे दुराचारी बन जाएंगे। भय करके कोई सदाचारी है, भय करके कोई संजमी है, भय करके कोई जोधा है, महाबली है, सूरमा है। दरअसल भय मनुख दी जीवां दी आंतरिक सुरक्षा है, न कि एक पीड़ा है, न कि एक दुख है। तो साहिब फरमान करते ने, भय विच राजा धर्म द्वार, भय विच सूरज भय विच चंद, को करोड़ी चलत न अंत, भय विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ। जीवन नू भय दे च रख के, प्रभु भय दे च रख के कोई सिद्ध बने, कोई बुद्ध बने, कोई देवता बने, कोई नाथ बने। रब्बी भय नू एक पासे कर दईए, ना कोई देवता बन सकता है, ना कोई नाथ बन सकता है, ना कोई बुद्ध बन सकता है, ना कोई सिद्ध बन सकता है। सिद्धियां प्राप्त होंदियां ने दरअसल प्राकृतिक परमात्मा दे भय नू मन के। बुद्ध प्राप्त होंदी है अपने आप नू मर्यादा दे च रख के, प्रभु भय नू मन के। और इसे तरीके नाल आत्म प्रकाश दा चानना हो जाता है, दीवा जल जाता है, मनुख देवता बन जाता है। पर बनन दा ढंग है प्रभु दा भय। कोई नाथ बन जाता है, भाव अपने जीवन नू नथ पा लैंदा है, सारियां इंद्रियां नू नथ पा लैंदा है, नाथ बन जाता है। तो ये प्रभु भय तो बिना इतनी उच्च पदवी दा प्राप्त करना कठिन है। भय विच आडाणे आकाश, ये जो तने हुए आकाश, ये जो व्यापक रूप दे खड़े ऊपर आकाश ने,
सत गुरुदेव जी महाराज कहते हैं ये भी भय दे च ने। भय विच जोध महाबल सूर, भय विच आवे जावे पूर। महाराज फरमान करते ने कि जितने सूरमे ने महाबली ने ये भय दे च ने ते सारियां ही जीवां दे सिर दे उत्ते भय दा लेख बकायदा तौर ते लिखिया होया है। कोई ऐसा जीव नहीं जिहदे मत्थे दे उत्ते ये भय दा लेख लिखिया होया नहीं। आखिर कोई ऐसा भी है जिहदे मत्थे ते ना होवे? तो महाराज कहंदे हां, सगलियां भौ लिखिया सिर लेख, नानक निर्भव निरंकार सच एक। महाराज कहंदे निर्भव भय तो रहत ते केवल वही है जिहड़ा आकार तो रहत है, और केवल वो इको एक परिपूर्ण परमात्मा है जो आकार तो रहत है, भय तो रहत है। जद कोई प्रभु दा भय मन लैंदा है तां फिर संसार विच निर्भय हो जांदा है ते प्रभु दा भय उसनूं शुद्ध कर दिंदा है, प्रभु दा भय उसनूं निर्मल कर दिंदा है, प्रभु दा भय आत्मिक आनंद तक ले जांदा है। इस वास्ते प्रभु दा भय मनुख मात्र दी एक लोड़ है, एक सुरक्षा है और एक बहुत वड्डी दात है जो जीवां दी झोली च परिपूर्ण परमात्मा ने पाके रखी है। मौत दा भय है, पशु पंखी कीड़े मकोड़े अपने आप नूं सुरक्षित थां ते ले जांदे ने, अपने आप नूं बचाउण दी कोशिश करदे ने। ये भय जे सारियां दे च ना होवे तां ना कोई अपनी तन दी हिफाजत करे ते ना ही कोई अपने मन दी हिफाजत करे। तो भय आंतरिक सुरक्षा है, बैरूनी सुरक्षा है। दूसरा श्लोक साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा, नानक निर्भव निरंकार और केते राम रवाल। निर्भव ते केवल निरंकार है, आकार तो रहत जो परिपूर्ण परमात्मा है। होर कितने राम इत्यादक जो कहे जांदे ने ओ ते रवाल ने, प्रभु दे चरनां दी खाक ने। भाव ईश्वर दे सामने कुछ भी नहीं ने, ये ईश्वर दी कृत ने, ये जगत दे करता नहीं, ये ईश्वर दी कृत है। तो साहिब कहते हैं होर केते राम रवाल, रवाल कहते हैं खाक नूं। होर कितने ही राम प्रभु दे चरनां दी खाक ने। केतियां कन कहानियां केते वेद विचार, कितने कृष्ण जी दियां गल्लां आखियां जांदियां ने, कथावां आखियां जांदियां ने, कितने ही वेद विचारक ने। साहिब कहते ने ये सब भय दे च ने, सारे परमात्मा दे भय दे च ने। केते नच्चे मंगते गिड़मिड़ पूरे ताल, कितने ही ऐसे नृत्यकार ने, नचदे ने टपदे ने ताल दे च, पर उन्हां दे अंदर भाव इक्को ही काम करदा है, जगत दे पदार्थ दी मंग। उन्हां दा नचना, उन्हां दा टपना, उन्हां दा ताल दा पूरना केवल दुनियावी मंग ते खड़ा है। अगां चल के आप कहते हैं बाजारी बाजार में आए कढ़े बाजार। इस तरह दे जेड़े नाटककार ने, नचन वाले ने, मंगते ने, बाजार विच आके तमाशा करदे ने और तरह तरह दे कौतक ओ जगत नूं विखांदे ने। और कौतक विखांदे आया कुछ गाउंदे ने। की गाउंदे ने? गावे राजे राणियां बोले आल पताल। गांदे ने राजे राणियां दे किस्से, गीत गांदे ने, महिमा गायन करदे ने राजियां दियां, राणियां दियां। और बोले आल पताल ऐसा बोलदे ने कि जैसे पाताल तो आवाज आ रही होवे, आकाश तो आवाज आ रही होवे, भाव समझ तो परे दी गल। ऐसे बोल बोलदे ने जो समझदे च नहीं आउंदे। गीत गाउंदे ने उन्हां दे जो हो गुजरे राजे ने, हो गुजरियां राणियां ने। लख टकियां के मुंदड़े, लख टकियां के हार। नचन लगिया वो अपने तन नूं सवारदे ने बड़े बेशकीमत गहणियां नाल। बड़े सुंदर कपड़े पहनदे ने, बहुत सोहणे गहणे पहनदे ने, राजियां दी नकल करदे ने, राणियां दा रूप धारण करदे ने, तरह तरह दे गीत गांदे ने, अपने आप नूं इस ढंग नाल सवार के। पर साहिब कहंदे ने जित तन पाईए नानका से तन होवे छार। जिस तन दे ते सुंदर कपड़े पाए जांदे ने, सोहणे गहणे सजाए जांदे ने, तन नूं खूबसूरत बनाया जांदा है, अंत दे च ਇਹ ਤਨ ਛਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡਈ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਗਿਆਨ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ
और तरह तरह के रास इत्यादि दिखाने और इस तरह का नचना ते टपना, इहदे नाल प्रभु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इस तरह दी गल्लां दे नाल, इस तरह के गीतां दे नाल ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ज्ञान न गल्लई ढूंढी है, ज्ञान इन्हां गल्लां दे नाल प्राप्त नहीं होता। अनुभव प्रकाश, अनुभवी ज्ञान ईश्वर का कथना करड़ा सार फिर कैसे प्राप्त होता है? महाराज कहते एक कथन करना इतना औखा है जिवें लोहे नूं दंदां नाल चबाना होवे। जैसे लोहे नूं दंदां नाल चबाना अत्यंत कठिन है, इवें प्रभु का ज्ञान जबान दे नाल पूर्ण तौर ते कथन करना औखा है। करम मिले तां पाइए, होर हिकमत हुक्म खुआर। जे बख्शिश होवे उस अकाल पुरख दी, जे रहमत होवे उस परिपूर्ण परमात्मा दी, तां प्राप्त हो जांदा है। मनुख दियां होर सारियां सियाणपां, मनुख दियां होर सारियां चतराइयां ख्वारी नूं ही जन्म देंदियां ने। इतनी गल स्पष्ट है कि परमात्मा प्रसाद नाल मिलदा है, प्रयास नाल नहीं। धन प्रयास नाल मिलदा है, प्रसाद नाल नहीं। धर्म प्रसाद नाल मिलदा है, प्रयास नाल नहीं। पदार्थ प्रयास नाल मिलदा है, प्रसाद नाल नहीं। परमात्मा प्रसाद नाल मिलदा है, प्रयास नाल नहीं। दरअसल परमात्मा दा मिलना एक प्रसाद है, ईश्वर दा मिलना एक प्रसाद है। अज तक दे ब्रह्म ज्ञानियां ने ऐसा ही आख्या है कि तू मिलिया सानू साडे प्रयास करके नहीं, तेरा प्रसाद, तेरी बख्शिश, तेरी रहमत। इस वास्ते धार्मिक दुनिया दे प्रयास की महिमा नहीं, प्रसाद की महिमा है। हाँ, पदार्थ की दुनिया दे प्रयास की गल है, मुशक्कत की गल है, मेहनत की गल है, पुरुषार्थ की गल है। पर धार्मिक दुनिया दे प्रसाद की गल है। इस वास्ते उस सतसंग नूं जिथे कथा कीर्तन होवे, लाजमी कुछ ना कुछ प्रसाद वंडिया जाता है, जो मिष्टान होंदा है, मिठा होंदा है। दरअसल एक इशारा है, एक प्रतीक चुनिया गया है कि प्रभु का प्रसाद अत्यंत मिठा है। ते प्रभु ते प्रसाद है, उदा कोई मुल नहीं, उदी बख्शिश है। साडे कीते कर्म, साडी कीती तपस्या, साडी कीती मेहनत उसका मुल नहीं है। वो जो मिले है ते उसका प्रसाद है। पर मेहनत कर करके, तपस्या कर करके ये पता चलता है कि प्रभु प्रयास नाल नहीं मिलता, प्रसाद नाल मिलता है। इस वास्ते साहब कहते ने ज्ञान उपरोक्त गल्लां दे नाल ते नहीं मिलेगा कि किसे राजे दे गीत गा लै, किसे धार्मिक राणियां दे गीत गा लै, नच लिया, टप लिया, रास पेश कर छड्डी, इहदे नाल परमात्मा दा ज्ञान नहीं मिलेगा। किवें मिलेगा? कथना करड़ा सार, ये ते लोहे दे चने चबाने ने। भाव इस छोटी जी जबान दे नाल पूर्ण परमात्मा दी गल आखनी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये ते करम मिले तां पाइए, होर हिकमत हुक्म खुआर। ये ते उसदी बख्शिश होवे ते ज्ञान अनुभव प्रकाश प्राप्त हो जाता है। और सारियां हिकमतां और सारियां जड़ियां चतराइयां ने ख्वारी नूं जन्म देंदियां ने, दुख नूं जन्म देंदियां ने। पौड़ी नदर करे जे अपनी, तां नदरी सतगुरु पाया। एव जीव बहुते जन्म भर में आ, तां सतगुरु शब्द सुनाया। सतगुरु जे वडदाता को नहीं, सब सुनियो लोक सवाया। सतगुरु मिलिए सच पाया, जिन्नी विचों आप गवाया। जिनी सचो सच बुझाया। इस पौड़ी दे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान कर रहे हैं, जे ओ अपनी बख्शिश करे, रहमत करे, ते उसदी सब तो वड्डी रहमत दा सदका बहुत वड्डी प्राप्ति आउंदी। किस दी? सतगुरु दी। कोई सतगुरु मिल पैंदा है, ज्ञान मिल पैंदा है, सत दा प्रकाश मिल पैंदा है। ये सब तो वड्डी बख्शिश है और ये सब तो वड्डी प्राप्ति है। इहो जी बहुते जन्म भर में आ, तां सतगुर शब्द सुनाया। बहुत जन्म तक जीव भटकदा रहा, जमदा रहा, मरदा रहा। आखिर इस जन्म मरण दे गेड़े च पै रहे इस जीव दे उत्ते प्रभु दी बख्शिश होई। कढिए इस नूं गेड़े दे चों, कढिए इस नूं चक्कर दे चों, तां कि सतगुर दा मिलाप करा दिता ते सतगुर तो फिर बोल सुने।
ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਏ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਬੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਤੱਕ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾ ਬੋਧ ਇਹੀ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬੋਧ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵੜ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਤਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ तमाम ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਗਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਐਸਾ ਜਨਮ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇਵੜ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੈਸਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸੁਣ ਲੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਏ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਛੜਿਆ, ਅਹੰਕਾਰ ਗਵਾ ਛੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਬੂਝ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਕਸ਼ ਦੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ।